Title of the topic is Importance of Ethernet Addresses. सबसे पहले हम objectives of the topic देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to explain the format of an Ethernet LAN address and their usage. Figures and material in this topic have been adapted from Wendell Udam's book, Computer Networking First Step. In an Ethernet LAN with a hub, a computer receives a lot of Ethernet frames due to the hub logic. Hub की logic क्या है? As soon as hub receives a frame on one of its port, क्या करता है hub? Hub उस frame को लेके हर जो जितनी भी ports हैं उसके साथ connected है उनके ऊपर उसको duplicate कर देता है और except उस port के जहां से उसने frame को receive किया. Only some of them, because of this logic, एक receiver के पास बहुत सारे Ethernet frames आ जाते हैं जो उसकी तरफ intended भी नहीं होते. So only some of them contain the data that is meant for the computer. Consider Larry, Archie and Bob are connected over an Ethernet LAN with a hub. A frame sent by Larry to Bob will be received by Bob and Archie. अगर हम इस डायग्राम को देखें तो Larry क्या करता है, एक फ्रेम जनरेट किया and hand it over to hub via the cable. अब ये हब क्या करता है, ये हब ने जिस पोर्ट से रिसीव किया है उस पोर्ट के अलावा बाकी जितनी भी पोर्ट्स एक्टिव हैं उनके ऊपर आपने फ्रेम को डुप्लीकेट कर दिया. जो पैकेट है वो आर्ची के पास भी जाएगा, वो पैकेट किसके पास भी जाएगा, बॉब के पास भी जाएगा. अब ये जो फ्रेम था क्या ये आर्ची के लिए इंटेंडेड था या सिर्फ बॉब के लिए इंटेंडेड था? अगर ये बॉब के लिए इंटेंडेड था तो आर्ची के पास जो फ्रेम आया है उसका तो वो यूजलेस है उसके लिए. Archie should simply ignore the frame and Bob should examine the data and process it. Practically, this becomes possible with the help of Ethernet addresses. So we need some kind of identifier जिससे जब एक NIC के पास एक frame आता है तो वो उस identifier को use करे to determine whether this Ethernet frame is meant for him or it should discard it if it's intended for some other PC. Before Larry sends the frame, he puts Bob's Ethernet address into a field in the Ethernet header called the destination address field. Now let's look at it. In this diagram, if you see, Larry ने एक frame generate किया, उसके अंदर append किया क्या? Destination का Ethernet address. In this typical case, 0200.222.222 is the Ethernet address of Bob. आर्ची का ईथरनेट एड्रेस क्या है? 0200.333.333. सो आर्ची का ईथरनेट डिफरेंट है और बॉब का आईपी जो ईथरनेट एड्रेस है ये डिफरेंट है. वी शुड कीप इन माइंड दैट ईथरनेट एड्रेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम आईपी एड्रेसेस. आईपी एड्रेसेस आर 32 बिट्स, राइट? हियर जो अगर आप देख रहे हैं तो ईथरनेट एड्रेस क्या होगा? 48 बिट्स का होगा. नाउ जो ही हब ने वो पैकेट रिसीव किया, वो फ्रेम रिसीव किया, आपका जो हब है वो क्या करेगा? उस फ्रेम को लेगा विच इज एक्चुअली इंटेंडेड फॉर बॉब, उसे आर्ची को भी देगा और बॉब को भी हैंड ओवर कर दिया. लेकिन एज सुन एज आर्ची का जो NIC है उसने ईथरनेट एड्रेस को देखा, उसने उसको डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि ये जो ईथरनेट एड्रेस है ये उसका ईथरनेट एड्रेस नहीं है. बॉब उस फ्रेम को रिसीव करेगा और उस फ्रेम के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा क्योंकि ये उसका ईथरनेट एड्रेस है. Each NIC has a unique Ethernet address which is put onto the NIC by the NIC manufacturer. Ethernet standards specify that addresses should be of 848 bits or 6 bytes long. IP addresses क्या होते हैं? They are of 32 bits. इस टेबल में हमने शो किया हुआ है बाइनरी नंबर शो किए हुए and their hex equivalent. 4-digit binary number 000 can be represented with one hex number 0. 001 का hex equivalent क्या है? 1 है. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So hex equivalent use करने से क्या होगा? I do not have to write 48 bits. Rather writing 48 bits हम लोग क्या कर सकते हैं? हम 6 bytes long का data represent कर सकते हैं. The Ethernet header includes both a source address field and a destination address field. Source address का क्या मतलब है?
सोर्स एड्रेस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस ईथरनेट एड्रेस से ये फ्रेम आ रहा है। और डेस्टिनेशन एड्रेस किस मकसद के लिए यूज होता है? जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उस मकसद के लिए यूज होता है कि वो एनआईसी, क्या ये एनआईसी को इसको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए इस फ्रेम को या नहीं। सो द डेस्टिनेशन आईपी, द डेस्टिनेशन ईथरनेट एड्रेसेस आर मेंट वेदर टू प्रोसेस इट और शुड बी इग्नोर इट। इस डायग्राम में हमने शो किया हुआ है कि ईथरनेट सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस कहाँ पे होते हैं। सो इफ लैरी इज अबाउट टू क्रिएट ए न्यू फ्रेम, तो जो लैरी है उसने डेटा लिया, एक उसने ट्रेलर उसके साथ अपेंड किया और एक हेडर अपेंड किया। अगर आप इस हेडर को देखें तो इस हेडर के अंदर डेस्टिनेशन ईथरनेट एड्रेस भी है और सोर्स ईथरनेट एड्रेस भी है। और ये दो फील्ड्स कितनी बिट्स के होंगे? ईच विल बी ऑफ 48 बिट्स। तो लैरी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा? लैरी फर्स्ट ऑफ ऑल विल क्रिएट ए हेडर, मेक माई एड्रेस द सोर्स, बिकॉज लैरी जो है उसने फ्रेम जनरेट करना है। तो सोर्स फील्ड के अंदर वो अपना ईथरनेट एड्रेस डालेगा। किसको फ्रेम भेजना है? बॉब को फ्रेम भेजना है। तो डेस्टिनेशन ईथरनेट एड्रेस में किसका एड्रेस डालेगा? बॉब का ईथरनेट एड्रेस डालेगा। एंड देन ही विल क्रिएट ए न्यू ट्रेलर, insert the data into the frame, and then the frame will be sent over to the hub. हब क्या करेगा? इसको आर्ची की तरफ भी सेंड करेगा और बॉब की तरफ भी सेंड करेगा। आर्ची का जो एनआईसी है वो डेस्टिनेशन ईथरनेट एड्रेस को देखेगा, एंड सिंस ये मैच नहीं करता आर्ची के एनआईसी ईथरनेट के साथ, तो क्या करेगा? इग्नोर कर देगा। बॉब का सिंस डेस्टिनेशन, जो इस फ्रेम के अंदर जो डेस्टिनेशन ईथरनेट एड्रेस है वो बॉब के ईथरनेट एड्रेस के साथ मैच कर रहा है, तो बॉब इसको फर्दर प्रोसेस करेगा। So after Larry assembles the frame, he can use the CSMA/CD logic to determine whether he can send the frame or not. In this topic, we have looked at what is the importance of Ethernet addresses. Ethernet addresses 48 bits के होते हैं और ये append किया जाता है in the header side of the Ethernet frame. So you have a source Ethernet address, you have a destination Ethernet address.